Good morning, students. We will continue our chapter History, chapter 2nd, India during struggle period 1296 to 1526 AD. Okay. We will move to next Mughal ruler Shahjahan. Shahjahan's original name was Khurram. Shahjahan's original name was Khurram. Original means childhood name. So his childhood name was Khurram. Okay. And in 1612 he was married to Arjumand Banu Begum, okay, later known as Mumtaz Mahal. Later he changed her name to Mumtaz Mahal, okay. And Mumtaz Mahal is the daughter of Asaf Ali. He is the daughter of Asaf Ali Khan. So Jahangir was enthroned in Agra in February 1628. Okay, so in 1628 he became the king in Agra. Okay. After when he became the king, during his period, Khan Jahan Lodi, Jujhar Singh Bundela revolted. Okay. So in this time, revolt occurred after he became the king. Khan Jahan Lodi and Jujhar Singh, who was better known as Bundela, he revolted against Shahjahan. So in 1632 AD, Shahjahan defeated Portugals in Hooghly. Okay, he defeated Portugals in Hooghly. He merged Ahmednagar into Mughal Empire. After that, he merged Ahmednagar into Mughal Empire. So after that, after merging Ahmednagar into Mughal Empire, he defeated Adil Shah. Okay, he defeated Adil Shah, the Sultans of Bijapur. And in 1652 AD, Shahjahan made his son Aurangzeb the viceroy of Deccan. Aurangzeb was the most powerful ruler of the Mughal dynasty. Okay, and Shahjahan made him viceroy of Deccan. Deccan means South India. Okay. So now Aurangzeb is the viceroy of the South India. So in 1657 AD, Aurangzeb captured Shahjahan in the fort of Agra. Okay. Then he killed his brother Dara, Murad and Suja, and himself sat on the throne. So in 1666 AD, Shahjahan died. In the war of the Dharmat between Darashikoh was the eldest son of the Shahjahan, and Shahjahan made him king in his life. Okay, so Darashikoh versus Aurangzeb. This was the battle take place at Dharmat. Okay, and in that battle, French traveler Bernier and Italian traveler Manucci explained the region of Shahjahan. Okay, they both developed present in the war of Dharmat, and they narrate the whole story. Okay, so next ruler is Aurangzeb. Aurangzeb 1658 to 1707 AD. Okay, so Aurangzeb defeated Rathore of Assam, Cooch Behar, Rangpur, Kamrup, Marwar after becoming the ruler. So when he became the ruler, he defeated Rathore of Assam, Cooch Behar, Rangpur, Kamrup and Marwar. Okay. Then he appointed Raja Jai Singh as a governor of the Deccan. Okay. In his place, he appointed Jai Singh of Amir, that is Jaipur. Okay. As the governor of the Deccan. In June 1665, the Treaty of Purandar
occurred between Shivaji and Raja Jai Singh. Okay, in which Shivaji gave is 22 forts. Shivaji gave is 23 forts. 23 forts. Okay, to Raja Jai Singh. Shivaji gave his 23 forts to Raja Jai Singh. Okay, so in section 65, section 66, Shivaji reached the court of Aurangzeb. Okay, Aurangzeb with the help of the efforts of the king Jai Singh. Okay, but Aurangzeb did not care for him with dignity, but was made captive in conspiracy. देखिए, शिवाजी ने औरंगजेब जब शिवाजी के पास गया, शिवाजी जब औरंगजेब के पास गया, औरंगजेब insulted Shivaji. Okay, he made him stand behind the lower class Mansabdar. Okay, and this will insult. So Shivaji escaped from the forts with the help of his companion and reached to the Maharashtra. Okay, यानी कि जो औरंगजेब था, औरंगजेब ने शिवाजी इंसल्ट की, शिवाजी को अच्छा नहीं लगा. यहीं से ये क्या हुआ, वहां से निकल के कहा चला गया, महाराष्ट्र चला गया. सो इन 1686 Aurangzeb himself went to Bijapur and took possession of Golconda. Okay, took possession of Golconda in 1687 AD. Okay, पोजीशन का मतलब होता है कि उसको गोलकुंडा में अपना क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, रूल कर लिया. ठीक है. So during his region, it was in his time, he increased tax on Hindu traders by 5%. ठीक है, हिंदू ट्रेडर्स पे 5% का इसने टैक्स लगा लिया था. इसने कहा था भाई हिंदू जो भी ट्रेडर्स, जो हमारे मेरे यहाँ पे जो भी हिंदू ट्रेडर्स बिजनेस करेगा उसको क्या देना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा. कितना परसेंट टैक्स पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा 5% देना पड़ेगा. ओके, एंड औरंगजेब ऑल्सो ऑर्डर टू डिमोलाइज temples in 1669. Okay, this made Hindu angry on them. So in 1679 AD, he imposed jizya was restored on Hindus. Jizya tax. Jizya is a kind of tax which was taken from the non-Muslim. Okay, so Hindu is the non-Muslim residing in the Muslim rule. Okay, that's why they have to pay jizya tax. Okay, so Aurangzeb also used religion as a tool. The ancient practice of Jharoka Darshan and music discontinued. Okay, he don't like music. That's why he discontinued music. And the magician lived in the Shahjahan and Akbar court. They left the court. Okay. So, and in 1707 AD, he died in Ahmednagar. 1707 में अहमदनगर में इसकी डेथ हो गई थी. कहाँ डेथ हुई इसकी, अहमदनगर में. ओके, so during his reign in 1668, under the leadership of Gokul, the Jat and the Satnamis rebelled in 1672. Guru Tegh Bahadur of the Sikh also raised his voice against Aurangzeb's atrocities. So that's why he killed Guru Tegh Bahadur. Okay. So after Aurangzeb, Mughals were very weak and the empire collapsed. Okay, and the empire collapsed. ठीक है. Now we will look at the administration during the Mughals. So emperor was the lord of the governance, है ना. लॉर्ड ऑफ द गवर्नेंस मतलब गवर्नेंस जो शासन है उसका सबसे बड़ा आदमी कौन था, एम्परर था. सो एम्परर वाज द टॉपमोस्ट, एम्परर इज द टॉपमोस्ट पोजीशन in the administration of the Mughal dynasty. So after that, Wakil Mutlaq, okay, Wakil Mutlaq means Wazir. Wazir also enjoy equal powers
as emperor. And after Vakil, Diwan Mir Saman, he is the chief of the finance department. These three has the topmost post in the Mughal administration. Okay, and the provincial administration. So provincial governance was divided into subdivisions. Okay, it is divided into subdivisions. Provincial एडमिनिस्ट्रेशन इज डिवाइडेड इनटू सब डिवीजन डिवाइड कर रखा था. सब डिविजन्स का मतलब होता है जैसे कंट्री है, कंट्री को डिवाइड कर रखा है, स्टेट्स में स्टेट्स को डिवाइड कर रखा है, डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट्स, देन तहसील, देन पंचायत समितिज, एंड देन पंचायत, ओके, एंड देन विलेजेस. ओके, दिस इज द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन द मुगल डायनेस्टी. ओके, so provincial governance was divided into subdivisions, which were 15 during the Akbarians and 21 during the Aurangzeb's period. तो औरंगजेब के समय में 15 तो प्रांत थे, है ना, प्रोविंस, 15 प्रोविंस थे, 15 प्रोविंस ड्यूरिंग अकबर्स रीजन्स, एंड बाद में 21 हो गया औरंगजेब के टाइम पर. ठीक है ना, बढ़ा लिया इसमें. देयर वाज ऑफिसर लाइक सूबेदार. Okay, they were officers like Subedar, Diwan, Sadr Kaji, Provincial Baksi, and Kotwal in the provincial administration. It means they are the officers at the provincial administration. Okay. The rule of the district was in the hands of the Faujdar. Faujdar was also known as the chief executive of the head of Sarkar. It means he is the head of the district administration. देखिए जो डिस्ट्रिक्ट है यानी जो जिला है, जिले के ऊपर जो है मेन जो ऑफिसर रहेगा वो रहता है फौजदार. ठीक है, फौजदार को हम कहते हैं ये हेड होता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का. ठीक है, एंड आफ्टर फौजदार अमल गुजार हु इज द हेड ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टर. इसको रेवेन्यू कलेक्टर कहते हैं, लाइक द मॉडर्न डे कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. ओके, इट मीन्स district collector. Amal Gujar is known as district collector. Okay, देखिए पहले फौजदार जो हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद में आता है अमल गुजार को हम रेवेन्यू कलेक्टर कहते हैं, जो रेवेन्यू जो टैक्स इकट्ठा कर लेता है, ठीक है ना, गांवों से. इसको हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बोल सकते हैं. He is also called as district collector. He is also known as district collector. After Amal Gujar, Bitakchis was the clerk in the district administration. ये जो होता है ना, बाबू कहते हैं इनको, क्लर्क होते हैं, जो क्लर्क का काम करते हैं, फाइल्स बनाना, लिखना, रिकॉर्ड रखना, वो सारा काम कौन करता है? बितकची करते हैं. ठीक है, एंड आफ्टर बितकचीज सिकदार इज देयर. सिकदार मेंटेन द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द परगना. ये परगना जो होता है, परगना के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम कौन करता है? सिकदार करता है. ठीक है ना, कौन करेगा? सिकदार करेगा. आफ्टर सिकदार आमिल इज देयर. आमिल इज ऑल्सो मुंसिफ, जो मुंशी का काम करता है. ठीक है, आफ्टर फौजदार मीन्स ट्रेजरर. फौजदार मीन्स इज द ट्रेजरर और खजांची. ठीक है ना, ट्रेजरर और खजांची, इसको खजांची भी कहते हैं, जो खजाने का रखवाला होता है. ठीक है ना, तो फौजदार को बोलते हैं ट्रेजरर, खजांची. एंड आफ्टर फौजदार कानूनगो इज द पटवारी ऑफिसर्स हु मेंटेन द लैंड रिकॉर्ड्स. ओके, सो टेक अ लुक once again to the provincial administration, district administration. Sorry. So number one is Faujdar. He is the head of the district administration. After that, Amal Gujar, who assisted Faujdar, and he is revenue collector. After that, Bitakchi is head of the clerks. After Sikdar, who maintained the general administration of law and order of the Pargana. And after that, Amil is known as Munsif. Okay, na? After that, Faujdar is known as treasurer or खजांची. And after Faujdar means the last officer in the provincial and district administration is the Patwari.
Okay, he maintained the land record of the villages. Okay, and the crops sown by them. Okay, this was the district administration. Okay, now king was the chief commander. King was the chief commander. Chief commander तो मुख्य सेनापति कौन था? राजा खुद हुआ करता था. सारे जो पावर्स वो तो राजा के पास हुआ करते थे. ओके, आर्मी वाज बेस्ड ऑन मनसबदारी प्रैक्टिस. आर्मी जो थी मनसबदारी प्रैक्टिस पे बेस्ड होती थी. ठीक है, मनसबदारी, व्हाट इज मनसबदारी? मनसबदारी इज ए पोस्ट. ठीक है ना, मनसबदारी क्या है? ये एक पोस्ट है. पोस्ट किसकी? रैंक की. ठीक है ना, ये रैंक होती है जिसके बाद जैसे कोई राजपूत कोई भी रूलर है, मान लीजिए उसके पास 5,000 जो है हॉर्समैन है. ओके, सपोज ही है 5,000 हॉर्समैन, देन हिज रैंक वाज 5,000 मनसब. ओके, तब उसकी रैंक क्या हो जाएगी? 5,000 मनसब हो जाएगी. ठीक है ना, ये एक सिस्टम होता है मनसबदारी का. एंड दैट मनसबदारी प्रैक्टिस स्टार्टेड बाय द अकबर. इट इज स्टार्टेड बाय अकबर. Okay, so let's take a look at the oppositions and cooperation with the rulers of the Rajasthan. राजस्थान के कुछ रूलर्स जिन्होंने अपोजिशन किया, यानी कि विरोध भी किया होगा इसका, मुगल डायनेस्टीज का, और कॉपरेशन किया यानी कि सहयोग भी किया है. ठीक है ना, राजस्थान के. सो नंबर 1 रूलर इज राव शेखा. So Rao Shekha was born on 24th September 1433. Okay, his father's name was Mokal and his mother's name was Nirvan. Okay, Rao Mokal was the ruler of Nan, which came under the states of Amer, Jaipur. नान एक जगह है जो कि जयपुर के अधीन आती थी. ठीक है ना. So in 1445 Rao Shekha took the succession of his father. It means he became the ruler at the age of 12 years. Okay, so he gave the title of Maharao. He take the title of Maharao by Amer ruler Uday Karan. Okay, so Amer ruler Uday Karan gave the title to Shekha Maharao. That's why he is known as Rao Shekha Maharao Shekha. So at the age of 16, he attacked on Multan, Sevar, Sakla Rajput of the Nagar Chal. Okay, which was Shekha's first successful campaign. ठीक है ना, ये जो है इसका फर्स्ट सक्सेसफुल कैंपेन जो रहा है इसका कौन सा? मुल्तान, सेवर, साकला राजपूत और नागर चाल. और ये रहा एट द एज ऑफ 16 साल की उम्र में. इससे पहली बार जो फर्स्ट सक्सेसफुल जो उसने प्रचार अपना अभियान शुरू किया था वो मुल्तान के दिन किया था, सेवर के अगेंस्ट में किया था, साकला राजपूत के अगेंस्ट में किया था, नागर चाल के. नागर चाल भी एक जगह पर थी. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ द पानी पठान्स Rao Shekha conquered Bhiwani from Noop Singh Jatu and Dadri with other Jatu Rajputs. And after that, he made Amritsar his capital in 1449. अमृतसर को इसने कैपिटल बनाई थी 1449 में. ठीक है. एंड Shekha also built a temple, and that temple is Shiv temple, and fort of Shikargarh. These two places were built by the Rao Shekha in 1477 AD. Okay, and Maharao Shekha fought 52 battles in his lifespan. Okay, 52 battles in his lifespan. He is considered the founder of the Shekhavat, a suburb of the Kachwa dynasty of Jaipur. His wife is Ganga Kumara. Built a temple. Okay, built a temple of the Kalyanji. उसकी जो वाइफ थी कौन थी? इसकी वाइफ गंगा कुमारा थी जिसने एक टेम्पल बनाया था, कल्याण जी का टेम्पल बनाया था. ठीक है ना. एंड ही डाइड इन 1488 एट रालावता. ओके,
रलावता एक सीकर में जगह पड़ती, वहां पे इसने अपना डेथ हो गई थी और यहीं पे इसकी अम्ब्रेला बनी हुई है ना, मेरे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को बोलते हम छतरी, ठीक ना, बनाई गई है, इसकी समाधि बनाई गई है। मतलब कहाँ पे बनाई गई? रलावता सीकर में। ओके, सो रलावता सीकर में इसकी क्या बनाई गई है? छतरी बनाई गई है। ओके, वापस देख लेते हैं। अमृतसर जो कैपिटल थी 1449 में, फोर्ट ऑफ शिकारगंज शिव टेम्पल built by Brahmashekha in 1477, and after that he fought 52 battles in his lifespan. Okay, and never lost any war. His wife Ganga Kaura made a temple of Kalyanji. Okay, and 1488 he died in Ralavata Sikar, where his umbrella is made. Next ruler is Hamir Dev Chauhan 1282 to 1301 AD. अगला जो शासक रहता है वो कौन था? हमीर देव चौहान रहता है 1282 से 1301 में। ओके, आफ्टर बागभट, हिज सन जत्र सिंह विच इज ऑल्सो नोन एज जयसिम्हा बिकेम द रूलर ऑफ रणथंबोर। ठीक है, बागभट के बाद में जत्र सिंह जो कि सन था इसका बागभट का, वो किंग बना। जत्र सिंह को हम क्या कहते हैं? जय सिम्हा भी कहते हैं। ठीक है ना। जयत्र सिंह अपॉइंटेड हिज यंगर ब्रदर हमीर देव एज हिज सक्सेसर। ओके, रणथंबोर। सो जयत्र सिंह अपॉइंटेड हिज यंगर ब्रदर हमीर देव एज हिज सक्सेसर। ओके, हमीर देव एज ए रूलर ड्यूरिंग हिज लाइफ स्पैन। अपने ही जीवन काल में जयत्र सिंह ने किसको? हमीर देव को अपने शासक बना लिया, घोषित कर दिया कि मेरे बाद ये राजा होगा। ठीक है ना। और ये कौन था? इसका यंगर ब्रदर था। यंगर ब्रदर का मतलब छोटा भाई था इसका। ठीक है ना। सो हमीर देव आफ्टर बिकमिंग द किंग, हमीर देव एडप्टेड द पॉलिसी ऑफ दिग्विजय, है ना, चारों तरफ विजय करना। एंड okay, so after that he defeated Arjun, king of the, he defeated Parmar rulers, Bhoj of south, Chittor. Okay, Bhoj of the south, Chittor. And next Abu Vardhanpur Kathiawar। देखिए इसने क्या किया था कि परमार जो राजा थे भोज, उसको हराया था, ये साउथ चित्तौड़ में शासन कर रहा था। एंड आफ्टर दैट ही ऑर्गेनाइज अ कोटि यज्ञ टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्री। कोटि यज्ञ होता है, एक रिचुअल है। इट इज एन रिचुअल टू सेलिब्रेट एनीथिंग मतलब इसने अपनी सेलिब्रेट की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए जो भी रूलर होता है वो कोटि यज्ञ यज्ञ करते हैं। ठीक है ना। सो इन हिज लाइफ स्पेन ही फॉट 17 वॉर्स and in that 17 wars he lost only one war. It means 16 won, 1 lost, and that was against Alauddin Khilji. Okay, so when Jalaluddin Khilji in Delhi saw Hamir's Dev growing power, okay, Hamir's Dev growing power, he moved towards Ranthambore. जब जलालुद्दीन खिलजी ने देखा कि जो दिल्ली के शासक था कि हमीर देव की पावर बढ़ती जा रही है, तो लगा कि भाई कभी फिर से मुझे मिलने भी एक डेंजर हो सकता है। इसलिए इसने क्या किया कि रणथंबोर पर अटैक किया। ठीक है, ही सीज्ड रणथंबोर फॉर सेवरल इयर्स, कई सालों तक ये रणथंबोर के चारों घेरा डाल के बैठा रहा। बट ही रिटर्न टू दिल्ली अनसक्सेसफुल इन जून 1291। लेकिन जून 1291 में ये अनसक्सेसफुल होकर वापस चला गया। कई सालों तक मतलब उसका जो किला था, ठीक है ना, जो किला था उसके चारों तरफ जो है ये किला है इसका है, इसी किले के चारों तरफ से घेरा डाल के बैठा था ये। ठीक है ना, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, अंदर जा नहीं पाया इसके किले के अंदर। ठीक है ना, दरवाजा भी नहीं खोल पाया था, मेन तो यही है। तो अब अंदर नहीं जा पाया, तो इस वजह से इसको कुछ चीज छोड़ के वापस जानी पड़ी 1291 में, क्योंकि दिल्ली में भी विद्रोह शुरू हो गए थे। सो इन 1296 okay, 1296 Jalaluddin's nephew and son-in-law Alauddin Khilji, okay,
murdered him and crowned himself as the king. अलाउद्दीन खिलजी ने उसको मार दिया 1296 के अंदर, जो कि इसका नेफ्यू था, नेफ्यू का मतलब भतीजा, और साथ साथ में इसका दामाद भी था, क्योंकि सन इन लॉ। मुस्लिम है ना, अपने रिलेशन में शादी करते, इसलिए इसको भतीजे को इसने अपनी बहन की बेटी के साथ शादी करवाई थी। नेफ्यू भी था, सन इन लॉ भी था। इसने क्या किया, बूढ़े जलालुद्दीन को मर्डर करके ये वहां का राजा बना। एंड आफ्टर दैट at the same time Alauddin also wanted to control over the Hamir's power and he got an excuse to attack the fort. देखो उसी समय जो है ना, सेम टाइम पे क्या था, अलाउद्दीन चाहता था कि वो कंट्रोल करे हमीर की पावर को, इसलिए उस चीज की उसको एक एक्सक्यूज भी मिल गया था। क्या मिला था? एक इसे एक्सक्यूज भी मिल चुका था उसके किले पे हमला करने के लिए। बिना कारण के कोई काम किया नहीं जाता, तो इसके लिए इसने क्या किया, भाई ये काम करने के लिए मुझे पहले कोई कारण ढूंढना पड़ेगा। ओके, he got the reason to attack on the fort. Okay, according to the Hamir's epic, हमीर का एक बुक है, हमीर मदन का बुक है, हमीर महाकाव्य जो है, ठीक है ना, हमीर महाकाव्य। ओके, अकॉर्डिंग टू हमीर महाकाव्य, अकॉर्डिंग टू हमीर महाकाव्य, हमीर gave shelter to मोहम्मद शाह, who is rebel of the अलाउद्दीन। अलाउद्दीन का एक दुश्मन, ठीक है, मोहम्मद शाह, उसको इसे शरण दे दी थी, ठीक है। when अलाउद्दीन asked for मोहम्मद शाह, हमीर refused to give back. Okay, मोहम्मद शाह and Kehabru, wife of Alauddin Khilji loved Kehabru, and they both make a plan to kill Alauddin, but Alauddin know his plan, and Kehabru have to run from that place. So Muhammad Shah and Kehabru run from Delhi, and they come in the kingdom of the Hamir, where Hamir gave shelter to both of them. Okay, and this was an excuse to attack on the Ranthambore by Alauddin Khilji. यही एक कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी ने उस पे कहाँ पर अटैक किया, रणथंभौर पर अटैक किया, ठीक है, जब उसके विरोधी किसको, मोहम्मद शाह और क्या नाम इसका, केहबरू को इसने शरण दी थी, ठीक है। सो अलाउद्दीन वॉज एंग्री एंड ऑर्डर टू अटैक रणथंभौर। अलाउद्दीन बहुत एंग्री हुआ तो उसने मार्च किया रणथंभौर की तरफ, ठीक है। सो इन 1299 उलू खान एंड नुसरत खान स्टार्टेड आउट विद 80,000 कैवलरी, मतलब कैवलरी होती है घुड़सवार सेना, एंड लार्ज इन्फेंट्री, पैदल सैनिक जिसको हम कहते हैं, सोल्जर्स ऑन द फुट एंड सोल्जर्स ऑन द horse back. Okay, so they started with 80,000 soldiers and attacked on Ranthambore, rural Ranthambore. Okay, so both armies met on the banks of the river Banas. Both armies met on the bank of the river Banas. बैंक का मतलब किनारा, किसका किनारा, बनास नदी के किनारे पे दोनों आर्मी मिली, एंड बैटल take place between Ulugh Khan and Nusrat Khan, commander of the Alauddin Khilji, versus Hamir Dev Chauhan. In this battle, Hamir Dev Chauhan fought very bravely, and he won that battle. And in this battle, he killed Nusrat Khan. Okay, and with the fear of the death, Ulugh Khan escaped and ran towards Delhi. अब देखिए ये जो बैटल थी बड़ी बहादुरी से लड़ी है इसने बैटल में, ठीक है ना। ये बैटल हुई है, बैटल में हमीर देव, उलूग खान और नुसरत खान की भी बैटल हुई है। हमीर देव जो था उस बैटल में जीता, इसने क्या किया कि नुसरत खान को तो मार दिया, और उलूग खान जो था वहां से भाग के दिल्ली चला गया। कहाँ चला गया ये रैन टुवर्ड्स दिल्ली। In 1301, Alauddin himself attacked on Ranthambore. After some time, after 2 years, Alauddin himself attacked on Ranthambore. Okay, so on that time, on
that time Hamir Dev was very suspicious. Okay, on that time some unscrupulous officers of Hamir Dev with Bhoj Dev, okay, along with Army General Ranmal and Ratipal, they joined Sultan and revealed the secrets of the Hamir Dev. कुछ जो करप्ट इसके आर्मी के जो ऑफिसर थे, एक भोजदेव था जो एक सरदार था, साथ ही साथ आर्मी के जो सेनापति थे इसके रनमल और रतिपाल, इन दोनों ने, ठीक है ना, रनमल और रतिपाल इन दोनों ने क्या किया, सुल्तान यानी कि अलाउद्दीन से मिल गए लालच में, कि भाई अलाउद्दीन ने इनको लालच दिया कि भाई तुम रनमल रतिपाल को मैं तुम्हें यहाँ का रणथंभौर का शासक बना दूंगा, ठीक है ना। और इसी लालच में आके इन्होंने अपना क्या किया, सीक्रेट जो हमीर देवी जो सीक्रेट्स थे बता दिए। ओके, सो व्हेन ही नो अबाउट द हमीर देव सीक्रेट, ओके, सुल्तान डिक्लेयर्ड द वॉर। सो इन दिस वॉर इज डन बिटवीन अलाउद्दीन वर्सेस हमीर देव। यह हमीर देव और अलाउद्दीन के बीच में हुई थी, जिसमें अलाउद्दीन जीत गया था क्योंकि ही नोज ऑल द सीक्रेट्स ऑफ द हमीर। और इसी बैटल में जो है ये हमीर देव केसरिया करते हुए मर गया। ओके, फीमेल्स ऑफ द किंगडम अलॉन्ग विद द रानी देवी जो थी इज द वाइफ ऑफ द हमीर देव एंड हिज डॉटर पद्मला, दे अलॉन्ग विद द वुमेन्स फीमेल्स ऑफ द किंगडम दे कमिटेड जल जौहर, ठीक है ना। जो लेडीज थी, फीमेल्स जो थी उस किंगडम के साम्राज्य की, साथ ही रानी रंग देवी और जो उनकी बेटी थी पद्मला, जिसने रणथंभौर में पद्मला तालाब बनाया था, इन सब लोगों ने जल जौहर कर लिया, मतलब पानी में कूद के अपनी जान दे दी थी, ठीक है ना। So Alauddin asked his betrayed रणमल एंड रतिपाल, अलाउद्दीन ने रणमल रतिपाल से पूछा, ठीक है ना। अब जब लास्ट में क्या हुआ कि जब लास्ट में ऐसा हुआ कि ये जब उसके पास रणमल रतिपाल ने दोनों ने कहा कि अब तो हमें आप सुल्तान यहाँ का राजा बनाओ, तो अलाउद्दीन ने कहा कि भाई जो अपने राजा का वफादार नहीं हो सकता वो मेरा वफादार कैसा होगा, और ऐसा बोल के इन दोनों को मरवा डाला, ठीक है ना। तो कहा जाता है कि अगर आप वफादार नहीं होंगे, किसी के अगर वफादार नहीं हो सकते, ठीक है ना, अगर आप अपने शासक के वफादार नहीं होंगे तो दूसरों के भी वफादार नहीं हो सकते, ठीक है। So one more powerful king is there, and we all know that very like Maharana Pratap. Okay, Maharana Pratap. We all know that. So Maharana Pratap was born in Vikram Samvat 1597. Vikram Samvat 1597, Jyesht Shukla Tritiya. Okay. It means in Sunday 9 May 1540 AD in Kumbhalgarh fort of the Katagad palace. Okay. His father name was Uday Singh. His father was Uday Singh. His mother's name was Jayavanta Bai, and Jayavanta Bai is the daughter of the Pali prince Akheraj Songara Chauhan. Okay. Akheraj, daughter of Akheraj Songara Chauhan. Okay. अब पाली के सोनगरा चौहान की क्या कौन थी, बेटी थी, कौन, जयवंता बाई। ओके, महाराणा प्रताप spent his childhood days in Kumbhalgarh fort, and after that Maharana Pratap was married in 1557 by Ajab Dev Pawar, okay, who gave the birth to Amar Singh in 16 March 1559. 1557 में इनका बर्थ, उनका मैरिज हुआ, शादी हो गई अजब देव पवार के साथ में, और इनका एक बेटा हुआ अमर सिंह 16 मार्च को 1559 में, ठीक है। सो महाराणा उदय सिंह डाइड ऑन Feb 28, 1572, okay, at the festival of होली के त्योहार पे इसकी डेथ हुई थी in गोगुंदा। So उदय सिंह was cremated in गोगुंदा। cremated का मतलब होता है दाह संस्कार, तो उनको वहीं पे कर लिया गया, ठीक है।
In 28 Feb 1572 महाराणा प्रताप क्राउंड एज अ किंग, ठीक है, महाराणा प्रताप को जो है किंग बना दिया गया था, महाराणा बना दिया गया था, कहाँ का, गोगुंडा का, मतलब पूरे चित्तौड़ का। सो इन 1576 अकबर नागौर कोर्ट हेल्ड, अकबर ने अपना नागौर दरबार लगाया था 1570 के अंदर, ठीक है ना, 1570 में अपना नागौर दरबार लगाया था अकबर ने। उस नागौर दरबार में मोस्ट ऑफ द रूलर्स, राजपूत रूलर एक्सेप्ट अकबर सब्जुगेशन, ठीक है ना, ज्यादातर जो राजपूत रूलर्स थे उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, मान ली थी, ओके, बट सम ऑफ देम लाइक महाराणा प्रताप एंड चंद्रसेन, ओके, महाराणा प्रताप एंड चंद्रसेन ऑफ मारवाड़, he is of Mewar king and Chandrasen Marwar king. They both refused to accept the subjugations of the Akbar. दोनों ने अकबर की अधीनता स्वीकार मना कर लिया था, ठीक है। Now अकबर sent 4 teams. अकबर sent 4 teams. 4 टीम को भेजा अकबर ने, ठीक है ना, to accept प्रताप सबमिशंस which was as follows, ठीक है। तो अकबर ने 4 टीम भेजी। नंबर 1 he sent जलाल खान in 1572, after that मान सिंह in 1573, then भगवंत दास father of मान सिंह in 1573, and last is Todenmal who is a revenue officer in the Mughal period 1573. All the teams, all 4 delegations failed to convince Pratap. Okay, all 4 delegations failed to convince Pratap. मतलब कि जो चारों जो डेलीगेशन गए थे, ठीक है ना, इस डेलीगेशन ने प्रताप को कन्विंस नहीं किया, मतलब मना नहीं पाए उसको कहने के लिए, ठीक है ना। सो नाउ अकबर वांटेड टू कैप्चर हिम, अकबर चाहते हैं कि मैं उसको पकड़ूं। मैगजीन फोर्ट, this fort was built by Akbar, okay, so in this in Ajmer, this fort is also known as Ajmer fort. He made the plan to capture Pratap in this fort, okay. Man Singh is the commander of the Mughal army, and Asaf Khan with Asaf Khan marched towards Haldi Ghati. लेकिन मान सिंह को कमांडर बनाया गया, युद्ध का सेनापति चुना गया, क्योंकि ये भी एक क्या है, मान सिंह भी एक राजपूत था, इज ऑल्सो एन राजपूत, एंड महाराणा प्रताप इज ऑल्सो राजपूत। तो इसको भेजा गया कमांडर बना के मुगल आर्मी का, ठीक है ना, हल्दी घाटी के लिए युद्ध में। सो बोथ आर्मीज मेट फेस टू फेस ऑन जून 1576। देखिए दोनों आर्मी जो है आमने सामने हुई जून 1576 में। एज वॉर स्टार्टेड, राजपूत अटैक मुगल सो एग्रेसिवली दैट मुगल सोल्जर्स रैन अवे। शुरू में ही राजपूत जो थे उन्होंने इतनी भयानक तरीके से, खतरनाक तरीके से अटैक किया था कि मुगल सोल्जर जो थे वहां से भाग गए। ऑन द सेम टाइम निहत्तर खान स्प्रेड द फॉल्स रूमर्स दैट अकबर हिमसेल्फ कम विद मोर आर्मी इन द बैटलफील्ड। सेम टाइम पे निहत्तर खान, ठीक है, इसने एक जोर से चिल्लाया वहां पर, मतलब एक अफवाह फैला दी कि अकबर खुद आ रहा है सेना लेकर। तो इससे क्या हुआ कि जो सैनिक जो थे उनमें जोश वापस आ गया, ठीक है, उनमें क्या हो गया, जोश वापस आ गया। मुगल आर्मी फॉट बैक। राम प्रसाद एलिफेंट विच वॉज द फेमस एंड डियर एलिफेंट ऑफ द फेवरेट एलिफेंट ऑफ द प्रताप। राम प्रसाद एलिफेंट था, बहुत फेमस एलिफेंट था और फेवरेट भी था प्रताप का। फेल इन द हैंड्स ऑफ मुगल, मुगल के हाथों में आ गया। अकबर चेंज हिज नेम टू पीर प्रसाद। अकबर ने इसका नाम क्या बदल दिया, पीर प्रसाद बदल दिया, ठीक है। महाराणा प्रताप, ऑन दैट टाइम महाराणा प्रताप लुक एट द कमांडर ऑफ द मुगल आर्मी। सो मुगल आर्मी फॉट बैक, समझ में आ गया मुझे। महाराणा प्रताप अटैक विद स्पीयर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स, बट मान सिंह हाइड हिमसेल्फ इन द होद्दा। देखिए हाथी जो था ना, एलिफेंट का जो इस टाइप से उसके कान वगैरह होते हैं ना, एलिफेंट है, ये सूंड वगैरह है इसकी, कोई बात नहीं,
ये इसका जो पीठ होती है, पीठ के ऊपर एक ऐसा बना हुआ रहता होता, ठीक है ना। और यहाँ बैठा रहता महावत जो चलाता उसको, यहाँ मान सिंह था जो चला रहा था, ठीक है ना, मतलब बैठा हुआ था। यह हाथी है, ठीक है। हाथी के जो दांत होते हैं इसमें चाकू लगा हुआ है। इधर महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े के साथ इस तरीके से इस पर अटैक किया, ये खड़ा है। यहाँ से इसने ऐसे इस पे भाला फेंका, मतलब ठीक है ना। ये तो क्या हो गया कि उस खुदी के अंदर चला गया, घुस गया। पीछे इसकी छतरी लेके एक आदमी खड़ा था, इसका बॉडीगार्ड, वो मर गया, ठीक है ना। तो ये नीचे बैठते ये इस पे लगा, ये गिरा, ये मर गया। सेम टाइम पे जो चाकू था उसने चेतक के पैर काट लिए। एट द सेम टाइम चेतक्स लेग्स वर कट विद द पॉइजनस डैगर्स टाइड टू द एलिफेंट्स ट्रंक, ठीक है ना। क्या कहते हैं पॉइजनस डैगर? डैगर मतलब होता है चाकू, लेकिन वो चाकू जो बड़ा खंजर जो होता है उसको क्या करते हैं कि जलाया जाता है, ठीक है ना। जहर में उसको क्या करते हैं, जलाते हैं। जब जहर उस पर चढ़ जाता है तो उसी को उसके सूंड में, मतलब जो टंग जो सूंड है उसमें बांध देते हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से क्या हो गया, उसके पैर कट गए, ठीक है ना। सो ऑन द सेम टाइम मुगल प्रताप वाज सराउंडेड बाय द मुगल आर्मी। प्रताप को जो है मुगल आर्मी ने देख लिया, तो चारों तरफ से उसको घेर लिया। सिंह दिस झालामान ऑफ द सादरी, सादरी पाली में पड़ता है ना, वहां के जो झालामान थे, रस्ड फ्रॉम द आर्मी। झालामान वॉज लुक लाइक महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप जैसे दिखने वाला एक बंदा था ये, है ना। राणा escaped from the battlefield by the advice of Jalaman Singh. Chetak died while he was crossing the small channel. Death of Chetak brought tears in his eyes. Means Maharana Pratap. The war ended with any conclusion. ठीक है ना। हम लड़ाई क्या होगी, प्रताप चला गया और जलामान सिंह उसका वो पहन के बैठ गया, लड़ाई हुई और महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाया, तो वॉर एंडेड विदाउट कंक्लूजन। इन 1571 Akbar himself come to capture Pratap but unsuccessful. 1571 में अकबर खुद आया था, कैप्चर किया इसने प्रताप को, लेकिन ये पकड़ नहीं पाया। After that he sent many delegations like in 1579 Shahbaz Khan, 1580 Abdul Rahim Khane Khana, 1584 Jagannath Kachwa. All are unsuccessful to capture Pratap. Okay, in 1585 Pratap made his capital Chavand by defeated Lunda Chavandia. And in 1597 Pratap died. Okay, this was a brave story of the brave personality Maharana Pratap, okay, who strongly resisted towards Akbar. So these are some important questions for you. What do you know about Rao Shekha? It is a long question written as on the battle of the Haldighati. It's also a long question. Hamirdev Chauhan was the ruler of the which rajas? It's a very small question, and this Hamirdev Chauhan के बारे में भी आपको लिखना है, तो ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। And these all questions are from your exercise except question 4th. Okay, thank you very much.